लघु उद्योग भारती की ओर से शुभकामनाएं। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लघु उद्योग भारती कर्नाटक और उसके सहयोग से IMS फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत को प्रदर्शित करने के लिए एक कर्टेन रेजर का आयोजन कर रहा है। विनिर्माण शो IMS 2023 16 अगस्त 2023 शाम 7:30 बजे, सिल्वर ओक हॉल, भारत। पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली। श्री प्रहलाद जोशी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, और श्री वी मुरलीधरन, माननीय विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार, डिफेंस के साथ कर्टन रेज का उद्घाटन करने की कृपापूर्वक सहमति दे दी है। सचिव श्री गिरिधर अरमाने, IAS, और डॉक्टर समीर कामत, अध्यक्ष DRDO। कर्टेन रेजर का मुख्य उद्देश्य भारत विनिर्माण शो का प्रदर्शन करना है। IMS 2023 जो 2-3-4-2023 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र, बेंगलुरु। शीर्ष केंद्रीय और राज्य मंत्री, नौकरशाह, राजदूत, व्यापार, वाणिज्यिक दूतावासों के अधिकारी, डोमेन विशेषज्ञ, उद्योग कप्तान और शिक्षाविद होंगे। इस कर्टेन रेजर का हिस्सा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो IMS 2023 प्रदर्शकों को एक आदर्श मंच प्रदान करेगा। अपनी नवीनतम तकनीकों, मशीनरी और उपकरण, अनुसंधान एवं विकास, संचार का प्रदर्शन करें और लॉजिस्टिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, ऊर्जा में एवं पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स और सामान्य इंजीनियरिंग। कौन कौन है? भारत और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी OEM, केंद्र सरकार के संगठनों, राज्य से सरकारें और उसके विभाग, कॉर्पोरेट और MSME भाग लेंगे। देखो, earlier we used to import a lot of machines, lot of technologies, लेकिन अभी because of Make in India for the world, because of this concept, we see a lot of industries who have come up with so many innovations, so many new technologies that we are not only importing but we are exporting. And the capabilities of India today has been very well with the Western countries as well. And our economy, as said already, we are already on top of, in the top list. We are among the 5 top economies in the world, wherein a few decades back, India was considered as underdeveloped country, then developing. Now we are in the top 5. Sir, what do you mean by IMS? This is India Manufacturing Show, wherein we will be showcasing the capabilities of MSME industries and the large industries, referring to defense and aerospace sector, as well as manufacturing and general engineering. Sir, what is the impact of artificial intelligence in the manufacturing industry? This is going to be a platform wherein we are going to showcase a lot of startups and AI technologies in this exhibition. We are creating a special pavilion, bringing all these technologies together during IMS 2024. What would you like to say in the end of this interview? We want more and more industries to come forward, take benefit of this exhibition. Also, Government of India, Ministry of MSME, they are giving subsidy for all small scale industries to showcase their products and services in this exhibition. Close to 80% subsidy to participate in this exhibition has been offered by Government of India, Ministry of MSME. दिल्ली का एग्जीबिशन में हमें कहता है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फेयर, दैट वो इसमें तो वो B2C का एग्जीबिशन होता है, लेकिन बेंगलुरु में हो रहा है वो IMS 2023 है, ये B2B एग्जीबिशन है, तो मैन्युफैक्चरर्स टू मैन्युफैक्चरर्स। सी MSME सेक्टर में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है वो सबको भी शोकेस करके बड़ा इंडस्ट्रीज के इंट्रोड्यूस करके रजिस्ट्रेशन के उसका बिजनेस बड़ा बनाता है। I think is that a line is that कि make in India, make for the world. What do you say about that? See, under our Atmanirbhar scheme of our Honorable Prime Minister, we have to 100% avoid the imports and reduce the import, and we have to manufacture according to the requirements of the local defense and aerospace product and other engineering product, not only for our indigenous requirement. After that we will start producing and we are going to export it also. That's exactly that mean. Actually sir, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता होगा लगातार बढ़ती ही जा रही है।
अब इंसानों की नौकरियां कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है इसमें क्या असर पड़ा है इससे? यू आर टोटली राइट। हम लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा कंट्री को इतना प्रॉब्लम अभी नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्री में लेबर का इतना अच्छा क्या मानते हैं आने वाले वक्त में हो सकता है? आने वाले वक्त में वो टोटली एडवांस कंट्री में इमीडिएट फ़र्क होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसका एवरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेना चाहता है, टेक्नोलॉजी चाहता है। ये सभी करने के लिए इनिशियली ओनली बड़ा कंट्रीज एडवांस कंट्रीज कैन डू दैट, बट हमारा कंट्रीज में इतना लेबर का एडवांटेज है, हमारा सबको। जो लघु उद्योग भारती है वो किस तरीके से इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है? किस तरीके का साथ मिलता है सरकार से? सब लघु उद्योग भर्ती इज मेनली ऑर्गेनाइजिंग all kind of event for the technology transfer to exhibition and hand-holding these things, startup companies and then village industries, वो सबको भी साथ करके एग्जीबिशन करेंगे। अच्छा, हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, अंत में उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? See, I always try to tell them, for the youngsters and all the viewers, make your own industries and be entrepreneur. Then without going to a job, you give a job to few other hands. That is my request. All right.